Thank you. Hello, good morning, students. So today we'll continue with the leverage analysis. So I have sent you two questions in the group. So we'll discuss these two questions and afterwards we will move on to the next topic because the time is very limited and we have to cover all the parts of the syllabus. सारा syllabus cover करना है तो थोड़ा थोड़ा सभी करेंगे. तो दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसके. Two already we have solved in one of the previous classes. Right. So today we are going to discuss problem number 6.3 and problem number 6.4. So the problem is already I have sent you in the group. So in this case, there is one company, Progressive Limited, and its original sales was 1 lakh. Now, if the sales goes up to 1,20,000, what happens to various leverages and what happens to the earning per share? That we have to calculate. Operating leverage, financial leverage, and earning per share we have to calculate. So this is the question 6.3. The problem already I have sent you in the group. If you don't have the book, you can refer to your WhatsApp group and you can get the question there. Okay, so first is question number 6.3. So we have to discuss the various leverages at different levels of sales. If sales is 1 lakh or if the sales is 1,20,000. If sales is 1 lakh, selling price per unit is given as 10 rupees per unit. So sales will be 1 lakh into 10, 1 lakh into 10,000, 10 rupees per unit, that will be 10 lakh. So sales will be 10 lakh. If the sales is 1,20,000 units, so 1,20,000 units into 10, 12 lakh will be the sales. Second is the variable cost. Variable cost is given as 6 rupees per unit. So 1 lakh unit into 6, variable cost will be 6 lakhs. Here 1,20,000 units into 6, 7,20,000. That will be the variable cost. 7,20,000 will be the variable cost. How we have calculated? 1,20,000 into 6. So what we will be getting is contribution. Sales minus variable cost. Sales 10 lakh. Variable cost 6 lakh. So contribution will be 4 lakh in this case. So in this case, 12 lakh minus 7 lakh 20,000, it will be 4 lakh 80,000 will be the contribution. Okay. So contribution 4 lakh and this fixed cost is given as 2 lakh. So fixed cost will remain same 2 lakh. What we will get is we will get earning before interest and taxes, EBIT. EBIT, earning before interest and taxes, we will be getting, that is 2 lakh in this case, 4 minus 2, 2. Here 4,80,000 minus 2 lakh will be 2,80,000. 2,80,000 will be the EBIT, earning before interest and taxes. Right, interest. So the firm has 10 lakh 10% debentures, means we are paying 10% on 10 lakh, that is 1 lakh. 10% on 10 lakh, 1 lakh will be the interest. So it will be same 1 lakh interest. So what we will be getting is earning before taxes, EBT, earning before taxes 1 lakh. So it will be 1,80,000 here. 2,80,000 minus 1 lakh. 1,80,000 is the earning before taxes. So we have to pay tax at the rate of 50%. 50% of 1 lakh will be 50,000. And 50% of 1,80,000 will be 90,000. 50% tax. Okay. So net income.
what we will be getting is net income that is available for the equity shareholders. So in this case, the net income will be 50,000. Net income will be 50,000, and here the net income will be 90,000. Net income will be 90,000 divided by number of shares. So company has total paid up capital of how much? 10 lakh divided into shares of 100 each. So 10 lakh divided by 100 will give us a figure of 10,000. It means company has 10,000 shares in its capital structure. 10,000. So it will remain same 10,000, 10,000. So earning per share will be 50,000. That is the net income available for equity shareholders. 50,000 divided by 10,000 number of shares. So it is 5. And here it is 90,000 divided by 10,000. It is 9. Earning per share is 9. So the question says this is earning per share EPS. Question says by what percentage the earning per share has increased. अर्निंग पर शेयर कितने परसेंट से इंक्रीज किया है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहले 5 था, अब 9 हो गया, तो कितना बढ़ा? 9 - 5, 4 रुपीज पर शेयर बढ़ गया. पहले 5 था, अब 9 हो गया. ठीक है, अर्लियर ऑन इट वाज 5, नाउ इट हैज बिकम 9. सो कितने से इंक्रीज हुआ? 4 रुपए पर शेयर से इंक्रीज हुआ, 4 रुपीज पर शेयर इंक्रीज हुआ. ठीक है, ऑन ए बेस ऑफ व्हाट? 5. 5 रुपए के ऊपर 4% इंक्रीज हुआ, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ 4/5 इंटू 100, 80% से इंक्रीज हुआ. 4 इंटू 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया? 80% से इंक्रीज हुआ. यही क्वेश्चन था कि अगर सेल्स 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो जाएगी, if sales will go up from 1 lakh to 1,20,000, by what percentage the earning per share will increase? The earning per share will increase from 5 to 9. It means there is a 80% increase. 80% increase in the earning per share. ठीक है, हाँ जी. सेकेंड क्वेश्चन है, हमको निकालना है degree of financial leverage and also degree of operating leverage. So degree of financial leverage का जो फॉर्मूला है वो है EBIT डिवाइडेड बाय EBT, जिसमें से इंटरेस्ट वाला पोर्शन कम हो जाता है. EBIT डिवाइडेड बाय EBT. तो फर्स्ट वाले केस में इट इज 2 लाख. 2 लाख इज द EBIT एंड EBT इज 1 लाख. ठीक है, 2 lakh divided by 1 lakh, it will be 2. And in this case, it will be 2,80,000 divided by 1,80,000. 2,80,000 divided by 1,80,000, 1.56. 1.56. Operating leverage calculate करना है. That is contribution divided by EBIT. Contribution divided by EBIT. So it is 4 lakh divided by 2 lakh. In the first case, it is 2. Okay. It is 4 lakh divided by 2 lakh. It is 2. Okay. So I hope it is clear. Right. And in the second case, it is 4,80,000. 4,80,000 divided by 2,80,000. 4,80,000 divided by 2,80,000. So it will be 1.71. 1.71. So this is the question and this is the solution. So this is problem number 6.3. 6.3, as I have mentioned it here. 6.3, this is the problem. I hope it is clear to you now. So one last question we will be discussing from this topic, then we will move on to the
next topic. The next topic is related with the theories of the capital structure. Theories of capital structure. Although the word is theories, but numerical questions are asked. Now we'll move on to problem number 6.4. Okay, 6.4. So in this case, there are two firms, XYZ Limited and ABC Limited. So this question is important because it shows that if no interest cost is there, there will be no financial leverage. अगर इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है तो इसका मतलब फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल लीवरेज भी नहीं है. ठीक है, तो दो फर्म है, एक फर्म में तो डेट यूज किया गया है, वन फर्म इज यूजिंग डेट. ठीक है, अनदर फर्म इज नॉट यूजिंग डेट. XYZ है, वो डेट यूज नहीं कर रही, इट इज विदाउट डेट, इट इज विदाउट लीवरेज. इसमें कोई भी डेट का इस्तेमाल या कोई भी उधार का इस्तेमाल नहीं किया है. ठीक है, XYZ ने. लेकिन ABC लिमिटेड है, दूसरी कंपनी है, उसने उधार यूज किया है. तो दोनों का रिस्क में क्या फर्क हो जाएगा, दोनों की फाइनेंशियल लीवरेज में क्या फर्क हो जाएगा, टोटल लीवरेज में क्या फर्क होगा, वो हम देखेंगे. अदरवाइज दीज टू कंपनीज आर सेम और सिमिलर. ठीक है, तो सेल्स दोनों की सेम है, 7 लाख 7 लाख. दोनों फर्म्स की सेम सेल्स है. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 7 रुपए पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन एज 7 रुपीज पर यूनिट. तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, कितने यूनिट हमने बेचे. तो अगर 7 लाख की सेल्स है तो इसका मतलब 10 रुपए पर यूनिट इसका सेलिंग प्राइस है. तो कितने यूनिट बेचे होंगे, 70,000. अगर 7 लाख की सेल है, इफ द सेल इज 7 lakh, okay, it means we are selling, the selling price per unit is 10. Selling price per unit is 10. It means how many units we are selling? We are selling 70,000 units. We are selling 70,000 units. So variable cost is 7 rupees per unit. It means 70,000 into 7, 4,90,000 will be the variable cost. So sales minus variable cost, what you will get? You will get contribution. Contribution is 2,10,000. It is same for both the companies. Both companies have the same sales, same variable cost. Okay, the only difference is this company is using debt, this company is not using debt. So interest component will come here, interest will not come here. Okay. Then next is the fixed cost. Fixed cost is same, 1,70,000 for both the companies. It is 1,70,000. 1,70,000, 1,70,000. What we will get? Contribution 40,000 here, 40,000 here. Contribution is also same, 40,000, 40,000. Okay. Contribution 40,000, 40,000. Same contribution. Okay. Next thing which we have to see is interest. So in this case we are not using any debt. कोई debt का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो interest नहीं होगा. Interest will be 0. Here we are using debt where we have to pay interest of 20,000. We have to pay interest of 20,000. ठीक है, so this is the interest cost 20,000. Interest is 20,000. ठीक है, this is interest. So what we will be getting, earning before taxes. So it will be same 40,000. It is same 40,000. Here it will become 20,000. 40 minus 20, 20,000. Interest before taxes. So the tax rate is 50%. It is given in the question. So tax will be 20,000. On an income of 40,000, we are paying 50%, means 20,000. Here on an income of 20,000, we are paying interest or tax of 10,000. So net income will be 20,000 and 10,000 respectively. So what we have to calculate? We have to calculate the degree of combined leverage. We have to find out the operating, financial and combined leverage of the firm. Operating leverage,
Second is the financial leverage, and third is the operating leverage. So operating leverage is EBIT. This is contribution over EBIT. Contribution over EBIT. So contribution is 2,10,000. EBIT is 40,000. Okay. This is 5.25. 5.25. And for firm ABC, also it is same. 2 lakh divided by 40,000, 5.25. Second is the degree of financial leverage. So in this case, the EBIT and EBTs are same. EBIT and EBT are same. So 40,000 divided by 40,000 means 1. 1 means there is no financial leverage. As I have told you in one of the earlier classes, फाइनेंशियल लिवरेज तभी होगी जब वो एक से ज्यादा होगी. अगर एक है तो इसका मतलब कोई भी फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है. There is no financial leverage if it indicates 1. So 40,000 divided by 40,000, it is 1. And here it is 40,000, क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट पे किया था 20,000 का, तो EBT 20,000 रहेगी. तो EBIT over EBT 40,000 over 20,000, it is 2. यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज है. अब इसका जो इफेक्ट है वो कंबाइंड लिवरेज पे भी पड़ेगा. टोटल लिवरेज यानी कि टोटल रिस्क जो कंपनी का है वो भी इफेक्ट होगा. द टोटल रिस्क ऑफ द कंपनी विल गेट इफेक्टेड. हाउ? इन दिस केस द टोटल रिस्क विल बिकम 5.25 into 1. 5.25, that is degree of operating leverage into degree of financial leverage. Degree of operating leverage into degree of financial leverage. तो ये रिस्क है 5.25 total risk, combined risk. Here it is 5.25 into 2, 10.5. तो इसमें देखिए आप रिस्क डबल हो गया. ओवरऑल रिस्क इस कंपनी का ज्यादा है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लीवरेज भी है 2. इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज है तो रिस्क कम है. It is 5.25. ठीक है. So this is how you have to solve the problems relating to operating, financial, and combined leverage. So you have to pay attention to this topic. One question is generally asked. So as far as the next topic is concerned, normally we don't get a question from that topic. So I am going to discuss the next topic, that is leverage, cost of capital, and value of the firm. Leverage, cost of capital, and value of the firm. What kind of relationship these three have? Leverage, cost of capital, and value of the firm. So in the previous chapter, only earning per share is required in the examination, which we have already covered. So the next topic which we are going to discuss is the leverage, cost of capital, and value of the firm. This is the topic: leverage, cost of capital, and value of the firm. So you see that these are three different variables: leverage, cost of capital, second variable, and third is the value of the firm. Value of the firm. Now, what we have to do in this topic, we have to see, is there any kind of relationship between these three or not? Leverage का मतलब है कितना हम debt use कर रहे हैं. How much debt we are using, that is known as leverage. Already I have told you in the topic which we have just discussed that leverage indicates the amount of debt a company is using. Company कितना debt का इस्तेमाल कर रही है, ज्यादा डेट का यूज कर रही है, कम डेट का यूज कर रही है, उससे हमें पता लगता है कि लीवरेज कितनी है. ज्यादा डेट का मतलब है ज्यादा लीवरेज यूज कर रही है, कम डेट का मतलब है कम लीवरेज यूज कर रही है, कोई डेट नहीं है तो मतलब कोई लीवरेज नहीं है कंपनी. ठीक है. सेकंड चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने
पिछले टॉपिक्स में भी कैलकुलेट किया था, वो WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन सी है? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लेंगे। जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, डेट और इक्विटी, उनका जो एवरेज कॉस्ट आती है उसको WACC या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और थर्ड चीज है वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या फर्म की वैल्यू, अगर हम डेट को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो उससे फर्म की वैल्यू क्या प्रभावित होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? यस, द क्वेश्चन इज कैन, if we increase debt, the value of the firm, if we increase or reduce the debt, डेट को अगर हम बढ़ाएंगे या हम डेट को कम करेंगे तो इसका जो प्रभाव है वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या होगा, वैल्यू पे क्या इसका असर होगा। ठीक है, और ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चीजें हमको देखनी है। दिस इज द थिंग वी हैव टू लुक। ठीक है, अगर हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, एरो ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज कर रहे हैं, नीचे है तो डिक्रीज कर रहे हैं। ऊपर है ना एरो, तो इसका मतलब हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव फर्म की वैल्यू पर क्या पड़ेगा और इसका प्रभाव कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या पड़ेगा, ये देखना है हमको। दूसरा है, अगर हम डेट को कम करेंगे तो क्या फर्म की वैल्यू इफेक्ट होगी, क्या फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी, ये चीज हमको देखनी है। दिस इज द प्रॉब्लम विच वी हैव टू सॉल्व in this particular topic, that is leverage, cost of capital and value of the firm। तो इसमें हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। We will be using some symbols। सिंबल्स यानी कि जैसे कि सिंबल है V। V क्या इंडिकेट करता है? वैल्यू ऑफ द फर्म। V इंडिकेट करेगा वैल्यू ऑफ द फर्म, चाहे आप लिख लो इसको, V इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकेंड जो सिंबल हम यूज करेंगे बी, बी का मतलब है डेट। बी स्टैंड्स फॉर बोरोड कैपिटल और डेट कैपिटल। आप डी भी यू लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल। चलो डी लिख लो क्योंकि डी ज्यादा आपको याद रहेगा। बोरोड कैपिटल शायद आप भूल जाए लेकिन डेट नहीं भूलेंगे, तो डी आप यूज करेंगे डेट के लिए। जो हम बोरोड कैपिटल है, जो हमने उधार लिया है, उसको डी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एस। एस है वैल्यू ऑफ इक्विटी। एस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, वी वैल्यू ऑफ फर्म, डी डेट की वैल्यू, एस जो है वो है वैल्यू ऑफ द इक्विटी। तो अगर हमको वी की वैल्यू, फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट वी, इट इज डी प्लस एस, यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डेट प्लस वैल्यू ऑफ द इक्विटी। तो इसमें एक एजम्पशन रहती है कि डेट एंड इक्विटी ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर देयर। तो ये जो चैप्टर है कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास सिर्फ दो सोर्सेज हैं फाइनेंस के। वी हैव ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। व्हाट आर दीज टू सोर्सेज? द सोर्सेज आर डेट एंड इक्विटी, नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज देयर। ठीक है, तो एक और चीज है केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। K stands for cost, D stands for debt, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। ये सिंबल हमको इस्तेमाल करने हैं, इसलिए आपको भी याद करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, देन वी हैव द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। KE मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितने परसेंट रिटर्न हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितना परसेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, देन KO,
KO means overall cost of capital. KO means overall cost of capital. That is, overall cost of capital is KO. Overall cost of capital is KO. This is WACC. KO को हम WACC भी बोल सकते हैं. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? KO is weight of equity into cost of equity. Weight of equity into cost of equity plus weight of debt into cost of debt. Weight of debt into cost of debt. तो KO मैं दोबारा बता रहा हूं, KO का मतलब है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC. KO को कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट. वेट यानी कि कितने परसेंट जो शेयर है टोटल कैपिटल में से वो डेट का है, कितने परसेंट शेयर है वो इक्विटी का है. उससे हम रिस्पेक्टिव कॉस्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें KO कैलकुलेट करना पड़ेगा. KO कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज KO. ठीक है, तो हम इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है. वो दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. KO is equal to operating income upon value of the firm. Operating income divided by value of the firm. Operating income divided by value of the firm. We can also calculate the cost of capital, KO. Okay, or we can say EBIT upon B. EBIT upon value of the firm. EBIT upon value of the firm. ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हैं वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं उसमें हम यूज करेंगे. उस सारी जो भी अभी हम थ्योरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, सारी थ्योरीज में ये कॉमन सिंबल यूज होंगे. तो ये सारी जो थ्योरीज हैं वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं. जैसे कि पहली अजम्पशन है डेट और इक्विटी सिर्फ दो सोर्सेज हैं फाइनेंस के. फाइनेंस के सिर्फ दो सोर्सेज हम एज्यूम करके चल रहे हैं, एक है डेट और दूसरा है इक्विटी, और कोई सोर्स नहीं है फाइनेंस का. ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एक और एजम्पशन है. एक पहली एजम्पशन क्या है? डेट, only debt and equity are available. Only debt and equity are available. No other source of finance is there. Debt and equity, only two sources of finance are available. No other source of finance is there. कोई और source नहीं है. Second assumption is cost of debt is lower than cost of equity. Cost of debt है वो कम है किससे? Cost of equity से. Cost of debt is lower than cost of equity. ये assumption हमारी रहेगी. ठीक है, तो ये जो assumptions हैं इसके बेस के ऊपर हम अब कुछ theories डिस्कस करेंगे. We are going to discuss some theories of the theories from this topic. The first theory is net income approach. Net income approach. किसी एक theory पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. First theory is net income. One question can be there. Net income approach. Net income approach. ठीक है, तो as per this approach हम जितना ज्यादा डेट का इस्तेमाल करेंगे, जितना हम डेट का इस्तेमाल करेंगे उतनी फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी. अगर आपके पास दो ऑप्शन है, कम डेट यूज करना और ज्यादा डेट यूज करना. ठीक है, दो आपके पास अल्टरनेटिव है, दो ऑप्शन है, तो हम कौन सा अल्टरनेटिव यूज करेंगे जिसमें ज्यादा डेट हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ज्यादा डेट यूज कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव हमको
ठीक है, यूज करना है। अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे फर्म की जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है, ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाएंगे फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी। तो एनआई क्या कहती है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द नेट इनकम अप्रोच? एज पर नेट इनकम अप्रोच, इफ वी इंक्रीज डेट, ठीक है, अगर हम डेट को बढ़ाएंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। हायर द डेट, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म, नंबर वन। नंबर टू, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है। और जैसे जैसे हम डेट बढ़ाएंगे केओ कम होता जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो डाउन। अगर हम डेट को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और केओ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये देखिए, अगर हम डेट को इंक्रीज करेंगे, ये एरो अपवर्ड इंडिकेट कि हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम डेट को इंक्रीज करते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव दो जगह पे पड़ेगा। इट विल हैव इफेक्ट ऑन टू थिंग्स। किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा? वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फर्म की, फर्म्स वैल्यू विल इंक्रीज। दूसरा इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पड़ेगा, के ओ। तो के ओ क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो एनआई के अकॉर्डिंग, एज पर एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, इफ वी इंक्रीज डेट, अगर हम डेट बढ़ाएंगे तो इसका प्रभाव दो जगह पे पड़ेगा। इट विल हैव इफेक्ट ऑन टू थिंग्स, वन इज द वैल्यू ऑफ द फर्म and the second effect will be on the cost of capital. Value of the firm will go up, वैल्यू जो फर्म की है वो गो अप हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे पता लग जाएगा। मान लीजिए कि ईबीआईटी एक फर्म की है 2 लाख। जो फर्म की ईबीआईटी है वो इट इज गिवन 2 लाख। ठीक है, और इसके पास इक्विटी कैपिटल है जिसकी की लागत 10% है। के ओ, के ई इज 10%। इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट 10% दी हुई है, और जो फर्म है उसके पास 5 लाख का डेट है। डेट कितना है? 5 लाख का, जिसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है। मैं रिपीट करता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया हुआ है कंपनी की, वो 2 लाख है, और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इक्विटी की वो 10% है। फर्म की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 10% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% दी हुई है, और कंपनी का जो डेट है वो 5 लाख का है, जिसके ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ द फर्म, calculate value of the firm, and also calculate the overall cost of capital. Calculate the value of the firm and also overall cost of capital. These are the two things we have to solve: value of the firm and cost of capital. So this is the question. Okay. Okay. So what we have to calculate this using NI approach. NI approach. तो अब हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर हम डेट को कम करेंगे या डेट को इंक्रीज करेंगे तो इसका फर्म की वैल्यू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इफेक्ट इट विल हैव। तो सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी इज गिवन 2 लाख,
इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% इंटरेस्ट है ना, तो 30,000 माइनस इंटरेस्ट 30,000, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट इनकम। ये वैसे नेट इनकम नहीं है क्योंकि टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन इस थ्योरी में ये भी एजम्पशन है कि टैक्सेस आर नॉट देयर। बाद में ये जो एजम्पशन है इसको रिमूव किया जाएगा। हम देखेंगे कि अगर हम टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। जब हम स्टार्टिंग में थ्योरी स्टडी करते हैं तो ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि इसमें टैक्सेस नहीं है, देयर आर नो टैक्सेस। ठीक है, तो नेट इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, 1 लाख। नेट इनकम विल बी 1,70,000। 1,70,000 कैसे, 2 लाख की ईबीआईटी है, उस पर हमने 6% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 30,000 इंटरेस्ट दे दिया, तो नेट इनकम बच गई 1,70,000। 1,70,000 इज द इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमको वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालनी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज एस इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये आपको याद करना पड़ेगा। जो वैल्यू ऑफ द इक्विटी हम निकालते हैं दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेट इनकम हमने निकाल ही लिया 1,70,000, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10, इट इज गिवन 10%। 10% मीन्स 0.10, 0.10। तो इक्विटी की वैल्यू हमारी निकल गई 17 लाख। वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज 17 लाख। ठीक है, वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज 17 लाख। वैल्यू ऑफ द डेट दैट इज डी is 5 lakh. It is already there in the question. Value of the debt is कितना है, 5 lakh. Debt is 5 lakh, equity is 70 lakh. This we have calculated. Value of the firm is S plus D. Already I have told you it is S plus D. यानी कि value of equity plus value of debt is value of the firm. So it is 22 lakh. 22 lakh is the value of the firm. Okay, 22 lakh is the value of the firm. अब हमको निकालनी है KO, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट। सो KO इज EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। इट इज EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। KO और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हमने देखा है EBIT कितना है, EBIT 2 लाख है, और वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकाली है, 22 लाख। Value of the firm is 22 lakh. So this is 0.09 or 9%. 0.09 or 9%. 0.09 or 9% is the cost of capital. Is the cost of capital. ठीक है, अब मान लीजिए फर्म अपने डेट को इंक्रीज करती है, तो इसकी वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब मान लीजिए डेट को इंक्रीज कर देते हैं 1 लाख से। फर्म ये डिसाइड करती है कि 1 लाख के नए डिबेंचर इशू करेगी 6% के हिसाब से, और ये जो 1 लाख रुपए आएगा इससे हम बाय बैक ऑफ शेयर्स करेंगे। शेयर्स को खरीद लेंगे वापस, जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर हैं वो खरीद लेंगे। तो कंपनी कैन रिजॉर्ट टू दैट। कंपनी कभी कभी बाय बैक ऑफ शेयर्स भी करती है, ठीक है, टू रिड्यूस इट्स कैपिटल। तो बाय बैक की ऑप्शन देती है, मार्केट प्राइस पे शेयर्स को बाय कर लेती है। मान लीजिए कंपनी 1 लाख का नया डेट इंक्रीज करती है। ठीक है, अब डेट को हमने क्या किया है, 1 लाख से इंक्रीज किया है।
इंक्रीज किया है, डेट को अगर हम 1 लाख से इंक्रीज करते हैं तो मतलब डेट कितना हो जाएगा, 5 लाख पहले था और 1 लाख और हो गया, 6 लाख हो गया, डेट अब 6 लाख हो गया। तो अब इसका प्रभाव फर्म की वैल्यू के ऊपर क्या पड़ेगा, ये हमको बताना है। What effect it will have on the value of the firm and also the cost of capital. अगर हम डेट को 1 लाख से बढ़ाएंगे, पहले डेट था हमारा 5 लाख, अब डेट हमारा हो गया 6 लाख, तो इसका इफेक्ट फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ईबीआईटी तो सेम रहेगा जितना पहले था 2 लाख। अब इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इंटरेस्ट क्योंकि पहले 5 लाख था ना डेट, अब 6 लाख डेट हो गया, तो 6% के हिसाब से अब हमें इंटरेस्ट देना है 6 लाख पे। पहले हम 30,000 इंटरेस्ट दे रहे थे, ठीक है, अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो 36,000 हो गया, 6% ऑन 6 लाख, तो कितना हो गया 36,000। तो अब हमारी नेट इनकम जो बच गई, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं, 1,64,000। अब हमारी नेट इनकम बच गई 1,64,000। ठीक है, तो अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ द इक्विटी, एस। एस इज वैल्यू ऑफ द इक्विटी, वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज नेट इनकम 1,64,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, वो चेंज नहीं हो रही, 1,64,000 डिवाइडेड बाय 10%। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ गई 16,40,000, 16,40,000 आ गई इसकी वैल्यू। इट्स वैल्यू इज 16,40,000। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द डेट डी हम अब हमारी 6 लाख हो गई है, पहले कितनी थी 5 लाख, अब हो गई है 6 लाख। वैल्यू ऑफ द डेट इज 6 लाख। अब टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो गई, 22,40,000, पहले 22 लाख थी, अब 22,40,000 हो गई, 16,40,000 प्लस 6 लाख, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज 22,40,000। जैसे ही हमने डेट बढ़ाया, फर्म की वैल्यू बढ़ गई। तो यही एनआई अप्रोच है कि ये एनआई कहती है जितना ज्यादा डेट यूज करोगे उतना फर्म के लिए अच्छा है, फर्म की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले थी इसकी वैल्यू 22 लाख, हमने डेट को इंक्रीज किया 5 लाख से 6 लाख, तो इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 22,40,000। अब मान लीजिए हम इंक्रीज नहीं करते डेट, हम रिड्यूस कर देते हैं। ओरिजिनल पहले था 5 लाख, ठीक है, ओरिजिनल वाज 5 लाख, सो वी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डेट वी रिड्यूस डेट, तो क्या होगा, तो नया जो अगर हम रिड्यूस करते हैं डेट को, सॉरी, इसमें हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालनी है, केओ। केओ हमारी है, केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म, तो ईबीआईटी हमारी है 2 लाख और वैल्यू ऑफ द फर्म है 22,40,000। अब ये 9% से कम आएगी, आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, इट विल बी लेस देन 9%। केओ कितनी हो जाएगी, ईबीआईटी सॉरी ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म, तो ईबीआईटी है 2 लाख, वैल्यू ऑफ द फर्म है 22,40,000, 22,40,000। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, यस, 2 लाख divided by 22,40,000, so this is 8.92। तो ये
आ गई हमारी 8.92। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.92% आ गई। पहले 9% थी, अब 8.92 हो गई। कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है KO वो कम हो गई। तो अब हम इसको समराइज कर सकते हैं, इसकी समरी बना सकते हैं। जैसे ही हमने इसकी डेट इंक्रीज की, वैल्यू 22 लाख से बढ़ के हो गई 22,40,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, 9% थी, अब 8.92 रह गई, 8.92 रह गई। तो दिस इज अबाउट द नेट इनकम अप्रोच। अब अगर आप इसको और आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं तो डेट को रिड्यूस करके देखिए। मान लीजिए हम 5 लाख की जगह 4 लाख का डेट यूज करते हैं तो क्या होगा? इफ डेट इज रिड्यूस्ड, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डेट को बढ़ाने की बजाय अगर हम डेट को कम करेंगे तो इसका जो असर क्या होगा? फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी और कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए 4 लाख का डेट यूज करते हैं। इफ वी मेक यूज ऑफ डेट ऑफ 4 लाख, तो EBIT देखते हैं। EBIT तो उतना ही रहेगा, 2 लाख। EBIT will remain same, 2 lakh. Interest 6% on 4 lakh will be 24,000. Interest will be 6% on 4 lakh, 24,000. Net income will be 1,76,000. 1,76,000. And KE is given as 10%. So S will be 1,76,000 divided by 0.10, that will be 17,60,000. ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको। तो EBIT 2 लाख, इंटरेस्ट पेमेंट की हमने 24,000, नेट इनकम बच गई 1,76,000। तो हमको पहले निकालनी है वैल्यू ऑफ द इक्विटी। वैल्यू ऑफ द इक्विटी विल बी 1,76,000 डिवाइडेड बाय 0.10, तो इट विल बी 17,60,000, 17,60,000। तो देखिए ये वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकली 17,60,000। वैल्यू ऑफ द डेट यानी कि D, वैल्यू ऑफ द डेट इज 4 लाख, क्योंकि हमने डेट को कम किया था ना, तो डेट है 4 लाख। तो वैल्यू ऑफ द फर्म अब कम हो गई 21,60,000। नई वैल्यू जो फर्म की वो कितनी आई है? 21,60,000। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब हो जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 21,60,000, तो ये हो जाएगी 9.25, 9.26 अप्रोक्सीमेटली। KO हो जाएगी 2 लाख divided by 21,60,000. So this will be 9.26 approximately, 9.26. तो हमारा कंक्लूजन क्या है? What is our conclusion? Our conclusion is that as per the net income approach के अकॉर्डिंगली अगर हम डेट को बढ़ाएंगे तो कंपनी को फायदा है। क्यों फायदा है? कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ द कंपनी विल गो अप एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कम डाउन। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ओरिजिनल उसकी वैल्यू 22 लाख थी, बढ़ के 22,40,000 हो गई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.9 रह गई। लेकिन अगर हम डेट को कम करेंगे तो फर्म को नुकसान है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। So this is the first approach, net income approach, NI approach. अभी 3 और अप्रोचेज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो करेंगे 3 और अप्रोचेज। नेट ऑपरेटिंग इनकम, NOI। फिर आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाएगी, ट्रेडिशनल अप्रोच,
और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे MM अप्रोच। MM अप्रोच 3 अप्रोचेस अभी और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। दैट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। कौन कौन सी? नेट ऑपरेटिंग इनकम, traditional approach and MM approach. That these 3 approaches we will discuss in the next class. तो आप ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इसको अपने आप दोबारा से एक बार सोचें समझे ढंग से और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? yes, I think now it is time for your questions. Please keep your questions ready. okay. हाँ जी, आयुष त्यागी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। 6.3 में इंटरेस्ट 6.3 में मैं देखता हूँ बच्चे, 6.3 में हाँ दिया हुआ है 10 लाख के डिबेंचर है। क्वेश्चन देखो बच्चे आप, जानवी प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। debentures are 10 lakh on which we have to pay interest at the rate of 10%। 10 लाख के ऊपर 10% जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, टोटल डेट इज 10 lakh, 10% on 10 lakh is 1 lakh। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो ना आप 6.3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऐड करना है 9996 124 828। चलिए ऐड कर देंगे। और सागर, हाँ ठीक है। जानवी इट इज नॉट पॉसिबल, कभी आप मुझको रिंग कर देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्लास में तो ये दोबारा दोबारा चीजें नहीं हम कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके। आप क्वेश्चन लेके आना, मुझे पता नहीं है ना एग्जैक्टली आपकी क्या प्रॉब्लम है, so that we cannot discuss old problems now। चैप्टर 7 में अर्निंग पर शेयर तक करना है आपको। अर्निंग पर शेयर मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर। उसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बीकॉम ऑनर्स में आते हैं क्वेश्चन ब्रेक इवन वाले। ठीक है, हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन आता है बेटे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आता है और वैल्यू ऑफ द फर्म, कॉस्ट निकालनी जरूरी है। हाँ यस, यस इट इज मस्ट, यू मस्ट कैलकुलेट। आधा क्वेश्चन करोगे तो फायदा ही नहीं है ना बच्चे, पूरा निकालना है, नंबर लेने हैं पूरे, तो दोनों चीजें निकालनी है आपको। सर सेंड लास्ट पेज वाला कैलकुलेशन, हाँ वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ऑल्दो ऑल द नोट्स आई हैव सेंड इन द ग्रुप, ये जो आज का जो लास्ट पार्ट रह गया वो मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा। डेट इंक्रीज किया, ओरिजिनल डेट है वो आई विल सेंड, यू नीड नॉट वरी दैट। ठीक है, दैट आई विल सेंड इन वन ऑफ द ग्रुप्स। जो कॉमन बच्चे हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। They can forward it in other groups. Let me do that immediately for you.
So these are already in the group. You can refer. Yes. अगर आप कुछ बच्चे कॉमन है ना सभी ग्रुप में, वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. चलिए मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए एक में, बाकी जो रह जाएंगे ग्रुप उसमें भी कर देंगे. यस. एनोनिमस में ऐड कैसे करूं बच्चे? ना आपने रोल नंबर लिखा है ना कुछ. एनोनिमस. Okay, I will add you. I will add you. 8130 585509. Okay, I will add you. Sir, WACC is equal to cost of. Is it right? Yes. Ayushi, yes. Ayush, sorry. Ayush, it is same. WACC is equal to cost of capital. WACC weighted average cost of capital. हम दोनों तरीके से इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं. We can calculate both ways. One by using the weights, and second is by dividing the EBIT with the value of the firm. Dividing EBIT with the value of the firm, you can calculate the WACC. That is one way. Second way is you can separately see what are the weights of debt and equity, multiply it with the cost of debt and cost of equity, and then add. So that will be WACC. But this method is simple, where you can calculate it by dividing the EBIT with the value of the firm. ठीक है, जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो EBIT को ऊपर रखेंगे, नीचे वैल्यू ऑफ द फर्म रखेंगे. Rajni, your number is not here. How I can add you? रोल नंबर नहीं बच्चे, रोल नंबर से नहीं ऐड होता ना ग्रुप में, कैसे ऐड करूँगा रोल नंबर? You can send me a message. My number is 7011039821. 7011039821. You can send me a message. I will add you. Ayush Tyagi, when sir, when we will have calculated KO with the help of weighted equity cost of equity plus. हाँ हाँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डेट की वैल्यू कितनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है. डेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फॉर्म, वैल्यू ऑफ द डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फॉर्म इनटू केडी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे. प्लस मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ द डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फॉर्म, वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फॉर्म इनटू केडी, प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. ऐसे आप डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, लेकिन जो हमने किया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है. थैंक यू आयुष. आयुष, यू गॉट इट वेरी गुड. क्या रिपीट करना है बच्चे? फोन नंबर 7011039821. 7011039821. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस नाउ. बच्चे मैंने ना फॉरवर्ड कर दिए, आपने जो ग्रुप का जो भी दूसरा एडमिन होगा ना उसको रिक्वेस्ट कर दो, क्योंकि एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिपीट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच ऑलरेडी आई हैव सेंट टू यू. यू कैन रिक्वेस्ट एनी ऑफ द ग्रुप कन्वीनर, या आप मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, मैं देख लेता हूँ.
Again, 7011039821. You must have a pen with you. Anji, any other question? Any other question? One more question I can take. It's 2 minutes left. Any question any student having? Please ask. Feel free. Next time we will be meeting and I will discuss all the theories. Hello. Okay, no more questions. Thank you very much.